So today we start the chemical properties of acids. Okay. तो first property जो acids की that is action with metals. Okay. देखो first chapter में I told you reactivity series. तो पोटेशियम दोबारा लिखते हैं एक बार reactivity series. पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, देन हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. So this is the reactivity series. अब according to reactivity series, metals which are placed above hydrogen in the reactivity series, they all will react with the acids, okay, to release hydrogen gas. So metals placed above hydrogen in the reactivity series react with acids to release hydrogen gas. Metal plus acid, then it will be formed salt and hydrogen gas. कोई भी मेटल लो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, okay? जैसे आयरन है, आयरन रिएक्ट्स विद HCl, so it gives rises to FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. इक्वेशन को बैलेंस करो 2HCl. आयरन यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज एक्वस, ये फिर सॉलिड बन गया और ये गैस. मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट में, तो डाइल्यूट के लिए देन अगेन एक्वस, सॉलिड. इट गिव्स राइजेस टू, जो भी हम एसिड लेंगे उसी का सॉल्ट बनेगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए है तो सॉल्ट क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट विल बी फॉर्म, तो MgSO4, दिस इज अ सॉल्ट, and plus hydrogen gas. Similarly, if we take zinc granules, granular zinc मतलब दानेदार zinc. Why do we take granular zinc? Because granular zinc always increases the surface area. तो यहाँ surface area will be increased in when we make them granulated, and due to increase in surface area, the rate of reaction will also be increased. So to increase the surface area, we make it granulated zinc, so that the rate of reaction is increased. So zinc chloride plus hydrogen. Okay, this is all. So see, all the metals which are placed above hydrogen. अगर अब यही आप reaction copper के साथ लिखते हो, suppose you write this, that copper plus HCl gives rises to CuCl2 plus hydrogen. तो ये reaction नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में. तो अगर कॉपर जो है इट इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. देखो सारी रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट की है, मेटल इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है. तो इफ वी राइट कॉपर प्लस HCl, देन नो रिएक्शन. No reaction means, or we can say no evolution of hydrogen. Hydrogen gas will not be evolved when we, why? Because copper is below hydrogen in the reactivity series, so it cannot displace hydrogen from the acid. So see this now how we have to do. Now in all these reaction, one other thing you note,
I have written the reaction with HCl and H2SO4, not with HNO3. Okay. अब why nitric acid is not being taken? देखो nitric acid does not react with metals to release hydrogen gas. Except Mg and Mn. इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता. दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड is a very strong acid, a strong oxidizing acid. Okay, so therefore it oxidizes hydrogen gas to water. And itself gets reduced to any of its oxide. Okay, like NO, nitric oxide, NO2, nitrogen dioxide, or N2O, okay, nitrous oxide. तो एनी ऑफ ऑक्साइड जो है दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम एसिड. ठीक है, अगर नाइट्रिक एसिड अगर हम लेते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड ऑलवेज ऑक्सीडाइजेज द मैटर, ठीक, में हाइड्रोजन टू वाटर. ठीक, उससे पानी बनेगा और ये खुद रिड्यूस होगा. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रिएक्शन लिखती हूँ कॉपर की, कि कॉपर विद नाइट्रिक एसिड, जिंक की लिख लेते हैं. कॉपर तो अदरवाइज ऑल्सो इट इज बिलो रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक प्लस HNO3. ओके, तो अगर आप इसकी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन लिखोगे, डाइल्यूट मतलब एक्वस, ओके, तो इट विल गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट, ओके, प्लस NO प्लस वाटर. तो देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड, ओके, नहीं निकलेगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जिंक जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर रहा है. So that's why the metals when react with hydrochloric acid or sulfuric acid, okay, then hydrogen gas is released and only those metals which are placed above hydrogen, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, सिर्फ वही मेटल्स. अगर आप सिल्वर, कॉपर इनकी लिखोगे HCl, HNO3, H2SO4, they will not release hydrogen, ये नहीं करेंगे. ओके, और नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शनल एसिड है कि जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है. So that's why it will oxidize hydrogen to water. So nitric acid also does not release hydrogen when react with metals. सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पे कौन कौन सी है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, कि they will react with nitric acid to release hydrogen also. अब why metals release hydrogen? Okay, on reacting with the acids, कि metals क्यों रिलीज करते हैं एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस को. मेटल्स जो है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. और इलेक्ट्रॉन डोनर्स. देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है. हम सोडियम का केस लेते हैं. कि सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281. Okay, 11 is the atomic number.
तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है, प्रोटॉन आर ऑल्सो 11, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 281। तो सोडियम की टेंडेंसी रहेगी कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये सोडियम कैटायन बनाएगा। अब जब ये कैटायन, अब ये इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट बाय दिस सोडियम, अब एसिड्स जो है, देखो एसिड्स, HCl एसिड एक्वस, अब वी नो कि पानी में HCl जो है डिकम्पोज करता है H आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। So acids are those which release H positive ion in their aqueous solution. अब ये H positive ion इस इलेक्ट्रॉन को readily gain करेगा, which electron which is lost by metal, जो मेटल ने लूज किया है, तो H positive will gain that electron, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, lost by metal, and it will form H atom. Positive charge and negative charge, they will, what will happen, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये H एटम बन गया, और H एटम प्लस H एटम they will give rise to H2 gas. So this is how hydrogen gas is released. कि मैटर्स जो है, अब मैटर्स क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, so that H positive ion is reduced to form H atom. देखो gain of electron, gain of electron का मतलब रिडक्शन, तो यहाँ पे H positive ions जो है they are reduced to form H atom. So therefore this electron जो है that is donated by matter, that's why metals displace hydrogen. अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल्स ना दे सकें, मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते तो मेटल्स will not release hydrogen when they react with acids. So that's why metals जो हैं, since they are electropositive in nature or electron donors, so they release hydrogen when they react with acids. अब एसिड्स में जैसे अब हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, लेट अस सी कि हाउ वी कैन डू इट इन द लैब, कि हम लैब में इसको कैसे कर सकते हैं। लेट अस टेक अ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में वी टेक जिंक ग्रैन्यूल्स, now through this funnel put acid in it. You can take HCl, you can take H2SO4, HCl. Now there is another delivery tube, इन अ ट्रफ, ये हमने एक ट्रफ ले लिया, और ट्रफ में आई हैव पुट द सॉल्ट, द सोप सॉल्यूशन, नाउ फिक्स इट इन अ स्टैंड, यहाँ से एक स्टैंड लो, fix it in a strand. Now what we notice, that when the reaction occurs, when we have put acid through it, and zinc granules react with acid, then hydrogen gas start coming out from this end, and here we can say the bubbles, so bubbles of soap. This is soap solution taken in a trough. So we can see the bubbles. Why these bubbles have been formed? क्योंकि गैस जो है when it comes through the soap solution, तो गैस is lighter, तो being lighter gas, it will rise up, and it will make bubbles. This. Now how will we test the gas? So test of hydrogen. So these are bubbles of soap solution. So hydrogen gas is released here, and it is making the bubbles.
अब टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ गैस इज टेस्टेड. तो व्हेन वी टेक अ बर्निंग स्प्लिंटर, near the gas evolved, okay, gas burns with popping sound. okay, जैसे पटाखों की आवाज होती है ऐसे गैस बर्न करेगी. तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द गैस. तो ये गैस का टेस्ट है. कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, नो कलर नो ऑर्डर, मतलब कोई स्मेल नहीं होती. लेकिन सिर्फ बर्निंग स्प्लिंटर लाने पे ये पटाखों की तरह जलेगी. इट विल प्रोड्यूस द पॉपिंग साउंड. तो दिस इज अ टेस्ट ऑफ द गैस. So this is how we can do it experimentally in the lab. Instead of hydrochloric acid we can take sulfuric acid also. So same amount of, there will be no effect on the amount of the hydrogen gas released, whether you take HCl or you take H2SO4. Why gas forms the bubble? Because gas is lighter than air. इसलिए, so that's why. So this was the that action of matters. When matters react with acids, then always hydrogen gas will be released, but only those matters which are placed above the hydrogen in the reactivity series. Only those matters will release hydrogen gas. Now second property. अब second property क्या है? Action of acids with metal carbonates and metal bicarbonates. Any metal carbonate or bicarbonate, let it see. कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट जो है अदर फॉर्म्स में किसमें, ये चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, eggshell is also calcium carbonate. तो calcium carbonate, तो metal carbonate when reacts with acid, let it be HCl again. So what will happen? So it will give rise to CaCl2 plus water and the gas release will be now carbon dioxide. So whenever metal carbonate reacts with acid, any acid, you can take H2SO4 also, salt, water and carbon dioxide will be formed. तो इसको हम रिएक्शन को ऐसे लिख लेते हैं. देखो, this metal carbonate plus acid, they give rise to salt plus water and plus carbon dioxide. Any carbonate you can take. अब CaCO3 की जगह you can take MgCO3. Even if we take MgCO3 and react with sulfuric acid, acid मैंने change कर दिया, aqueous की जगह H2SO4 कर दिया, तो what will happen? Now MgSO4, जो एसिड लोगे वही सॉल्ट बनेगा. अगर क्लोराइड लेते तो क्लोराइड बनता, सल्फेट है तो सल्फेट बनेगा. और प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 3 H2 है सल्फेट, बैलेंस्ड इक्वेशन. और इसमें इफ वी बैलेंस द इक्वेशन, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. यू कैन टेक, अगर आपको जैसे ये आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज poured over eggshells. एगशेल्स का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसका मतलब आप कैल्शियम कार्बोनेट की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखो.
okay, with nitric acid. तो अब क्या बनेगा, क्योंकि अब नाइट्रेट है तो therefore कैल्शियम नाइट्रेट will be formed. तो CaNO3 whole twice और then water and CO2. Okay, again the same कि कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2. तो एनी मेटल कार्बोनेट एंड एनी ऑफ द थ्री एसिड्स, ये हम मतलब इन होल चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल एसिड्स, और मिनरल एसिड में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन्हीं सब की रिएक्शंस लिखेंगे. ओके, तो एनी ऑफ द थ्री एसिड्स, एनी ऑफ द मेटल कार्बोनेट, प्रोडक्ट्स में हमेशा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इसी तरह से ये जैसे कार्बोनेट की रिएक्शन है, सेम वे इफ वी टेक मेटल बाइकार्बोनेट. ओके, अगर बाइकार्बोनेट लेते हैं इनकी प्लेस पे, metal bicarbonate, and we react it with acid, then again क्या बनेगा, salt plus water plus carbon dioxide. अब metal bicarbonate, जैसे suppose we take NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, let it be HCl. So this is sodium bicarbonate. Plus HCl. So it gives rises to NaCl plus H2O or plus CO. Okay. Then these will be the products formed. NaCl plus H2O plus CO2. Okay. तो that is the, तो उसी तरह देखो ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर और CO2 गैस हैज बीन रिलीज. बैलेंस्ड है इक्वेशन ऑलरेडी. यस, the equation is balanced. So this is how the metal carbonate or metal bicarbonate, when they react with acid, they release carbon dioxide gas. When metal alone react with acid, they release hydrogen gas. लेकिन यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड. अब टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. देखो CO2 gas on passing through lime water turns lime water milky. अब लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज द लाइम वाटर. केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो व्हेन वी पास CO2 थ्रू इट, so it will make CaCO3 plus water. ये रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स वाटर मिल्की, मेक्स लाइम वाटर मिल्की. मतलब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके वाइट पीपीटी बनते हैं, ये सॉलिड है. क्या मेक्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज इट फॉर्म्स वाइट पीपीटी. वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो उसके कारण ये मिल्कीनेस आती है. नाउ इफ वी पास इट इन एक्सेस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पाया जाए, पास किया जाए, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, milkiness disappears. Okay, because
of the formation of soluble calcium bicarbonate. तो रिएक्शन देखो, जो ये हमने रिएक्शन लिखी है, पहले प्रोडक्ट्स बने थे CaCO3 प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट्स है फर्स्ट इक्वेशन के, इसमें ही आप CO2 और पास करो, ओके, तो इट विल गिव राइज टू CaHCO3 होल ट्वाइस, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 3 रिएक्टेंट टुगेदर गिव 1 प्रोडक्ट, तो दिस इज soluble and due to formation of calcium bicarbonate milkiness disappears, okay. अब further, but further on heating, heating the solution, milkiness reappears. के दोबारा आ जाएगी. अब why it reappears, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट when it is heated, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, 1 रिएक्टेंट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO, जो पहले प्रोडक्ट था वो हमने रिएक्टेंट ले लिया और जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट बन गए हीटिंग पे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, तो इट डिकम्पोजेज अगेन. नाउ सिंस अगेन कैल्शियम कार्बोनेट हैज बीन फॉर्म्ड, ओके, और इसके वाइट PPT हैं, so due to formation of calcium carbonate milkiness reappears, ये दोबारा आ जाएगी क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीनेस कॉज कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये दोबारा बन गया हीटिंग पे, तो देयरफॉर मिल्कीनेस रीअपीयर्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर, okay, that lime water turns milky when we pass carbon dioxide through lime water, okay. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारी, दैट इज कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन व्हाट हैपन्स. तो कोई कार्बोनेट हो कोई बाइकार्बोनेट हो, ये हमेशा ये याद रखो कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 निकलेगी, कि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही बाहर आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. अगर अकेला मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, तो फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कि फिर वो एसिड की हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं मेटल्स जो हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. लेकिन अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो फिर कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, ओके. तो दिस वाज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. अब एक प्रॉपर्टी और करते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, तो हम 1-2 लेक्चर्स में ये करेंगे कंप्लीट. अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज एक्शन विद द बेस, एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. अब action of acid with base, acid and base when they react together, so they react together to give salt and water. क्या हमेशा यही बनेगा, सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा. The reaction is called neutralization reaction. देखो बेसिस होते हैं, बेसिस जो है बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स. इसको हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे व्हेन विल डू बेसिस. अभी जनरल के लिए एसिड आप कोई भी लिखो, लेट इट बी HCl. बेस कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड, लेट इट बी NaOH, के सोडियम हाइड्रोक्साइड है. तो व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर तो सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट कौन सा बनेगा, मेटल का क्लोराइड के साथ, तो NaCl और प्लस वाटर.
Okay, so this is a neutralization reaction. You can take any other H2SO4 ले लो, okay? उसको सॉल्ट दूसरा कर, मतलब बेस दूसरा कर दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, okay? अब K विद SO4, तो अब SO4 की तो वैलेंसी 2 है, तो इसलिए K2SO4. ये सॉल्ट जो बनेगा उसका फॉर्मूला आपका करेक्ट होना चाहिए, तो इट विल बी K2SO4 प्लस वाटर. तो बैलेंस होगी इक्वेशन ऐसे. Okay, this is a balanced equation. Okay, you can write any other. आप HCl को फिर ले लो प्लस CaOH होल ट्वाइस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो यहाँ पर. तो मेटल हाइड्रोक्साइड विद HCl तब CaCl के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव राइज टू CaCl2 और प्लस वाटर. Okay, अब क्लोराइड के 2 हैं तो 2 से बैलेंस हो गई इक्वेशन. दिस इज. तो metals when react, मतलब the acids when react with the bases, तो they always produce salt and water. Salt के सब salt हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, these all are salts. हम अभी चैप्टर में आगे भी इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो these are the neutralization reactions when acids react with bases. Okay, तो then it is called the neutralization. तो 3 तरह की reactions हमारी होंगी. Okay, अब 3 reactions में देखो, फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स. ओके, तो व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, और सिर्फ वही मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ओके, व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले, दे ऑलवेज कैन में व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज. आप इसको ऐसे ही याद रखो, जनरल रिएक्शन में याद करो. तो उसके बाद फिर यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल. ओके, तो हाइड्रोजन विद, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स लेने हैं, नीचे वाला अगर लिख दोगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगी. ओके, तो एसिड विद मेटल रिलीज हाइड्रोजन, सॉल्ट इज फॉर्म्ड. ओके, सॉल्ट बनेगा साथ में एसिड का. एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट फिर बनेगा, लेकिन अब गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऑल्सो. पानी भी बनेगा और CO2 भी रिलीज करेगा, चाहे मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट है. ओके, और तीसरी रिएक्शन अब मैंने आपको बताई है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. ओके, तो बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो तब अगेन सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड. तो सॉल्ट, लेकिन अब उसके साथ गैस कोई रिलीज नहीं होगी, सॉल्ट के साथ सिर्फ पानी बनेगा. ओके, सॉल्ट एंड वाटर. दूसरा जनरल रिएक्शंस जो हैं उनको आप लर्न करोगे तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द इक्वेशंस. कि कैसे हमने इक्वेशन लिखनी है. मतलब दोबारा देखो, एसिड विद मेटल्स, हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट विद एसिड, ओके, देन सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर. ओके, एंड देन एसिड विद बेस, देन सॉल्ट विद वाटर, देन नो गैस इज रिलीज. और ये जो प्रॉपर्टी है वी कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है जब एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो दीज वर द सम ऑफ द प्रॉपर्टी थे. अभी देयर सो मेनी मोर. ओके, तो अभी मैंने 3 प्रॉपर्टीज आज की हैं. तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके.